سب کہیں ہاللیلویا. آپ تمام کی سلامتی ہو. میرے عزیز جو سیریز ایک چل رہی ہے آپ کو معلوم ہے تھیم کیا ہے؟ تھیم کیا ہے؟ عبادت کا مقصد. The purpose of worship. آئیے آج ہم چوتھے پارٹ کے اندر موجود ہیں جس کا سیکنڈ تھیم کیا ہے؟ اپنا فرض کیا کرنا ہے؟ ہم نے اپنا فرض ادا کرنا ہے. اب جانتے کہ فرض کیا ہوتا ہے؟ کسی کا کوئی آئیڈیا کہ فرض کس کو کہتے ہیں یا آپ کا کیا فرض ہے؟ ذمہ داری. ذمہ داری. آپ کی خدا کے گھر میں کیا ذمہ داری ہے مائیکل بھائی؟ عبادت کرنا. یہ خدا کی خدمت میں ہے, ڈھیکن ہے, پورے چرچ کو ہولڈ کرتے ہیں. اور بہنوں میں سے جو سمجھے کہ میرا یہ فرض ہے خدا کی خدمت میں یا خدا کے کاموں میں, کوئی کسی کو آئیڈیا ہے؟ میں چرچ جانا ہے پر ضرور جانا ہے, نہ جاؤں گی تو میں پریشان رہوں گی. پھوپھو کے لیے زوردار تالی ہے. کیا بات. ان کی عمر 50 سے اوپر ہے اور انہوں نے کہا ہے میرا یہ فرض ہے کہ میں نے خدا کے گھر میں جانا ہے اور عبادت لازمی کرنی ہے. اگر کبھی نہ چرچ جا سکوں, نہ عبادت کر سکوں تو میرا میرا دل جو ہے وہ گھبراتا ہے اور پریشان رہتا ہے. ایسے ہی ہے. آئیے سب سے پہلے ہم زبور کی کتاب اس کا 50واں باب, جن کے پاس خدا کا کلام ہے میرے ساتھ نکالیے. زبور کی کتاب ہے, بڑی خوبصورت بات لکھی. یہ آصف کا زبور ہے. 50 باب کی 5ویں آیت میں خدا کے کلام میں یوں لکھا ہے کہ میرے مقدسوں کو میرے حضور کیا کرو؟ میرے مقدسوں کو, میرے مقدسوں کو میرے حضور جمع کرو. جمع کس لیے کرنا ہے؟ کیا سبب ہے؟ کیوں جمع کرو؟ اپنے گھروں پر رہے, جہاں بیزی ہے وہیں پر رہے, لیکن جمع کیوں کرے؟ پیچھے وجہ کیا ہے؟ تاکہ یہ میری عبادت کر سکے. میرے حضور, میرے مقدسوں کو میرے حضور جمع کرو جنہوں نے قربانی کے ذریعہ سے میرے ساتھ کیا باندھا ہے؟ عہد باندھا. آئیے یسایہ کی کتاب کے اندر چلتے ہیں. یسایہ کی کتاب اس کا چیپٹر 43 ہے, 43واں باب اور اس کی 7ویں آیت ہے. بڑی اہم بات آپ سے کرنے چاہ رہا ہوں. ویسے خدا کی ہر بات ہی بڑی اہم ہے, لیکن یہ آپ کو تخلیقی باتوں کی طرف لے کے جائے گی. 43ویں باب کی ہم دیکھیں گے 7ویں آیت. جی کوئی بھی پڑھنے میں رہنمائی کرے. ہر ایک کو جو میرے نام سے کہلاتا ہے. جو کس کے نام سے؟ میرے نام سے. اب کس کے نام سے کہلاتے ہیں؟ اب کس کے نام سے کہلاتے ہیں؟ اب خدا کے لوگ ہیں تو خدا کے نام سے کہلائے جائیں گے. یسایہ کہتا ہے ہر ایک کو جو میرے نام سے کہلاتا ہے اور جس کو میں نے اپنے جلال کے لیے خلق کیا. خدا نے ہمیں اب کس کام کے لیے خلق کیا ہے؟ اپنے جلال کے لیے خدا نے ہمیں خلق کیا. جسے میں نے پیدا کیا. خدا کہتا ہے جسے میں نے پیدا کیا. ہاں جسے میں نے ہی پیدا کیا. 7ویں آیت آپ کے لیے دوبارہ پڑھنا چاہتا ہوں. ہر ایک کو جو میرے نام سے کہلاتا ہے اور جس کو میں نے اپنے جلال کے لیے خلق کیا, جسے میں نے پیدا کیا, ہاں جسے میں نے ہی بنایا ہے. آمین. خدا نے ہمیں اپنے جلال کے لیے بنایا ہے. تو جس نے ہمیں جس مقصد کے لیے بنایا ہے, اگر وہ مقصد ہم نہ پورا کر سکے تو کیا فائدہ؟ آئیے 21ویں آیت میں پڑھیں گے. جی مائیکل بھائی, اسی بات کی 21ویں آیت.
میں نے ان لوگوں کو, خدا کیا کہتا ہے, میں نے ان لوگوں کو اپنے لیے بنایا ہے. خدا نے ہمیں کس کے لیے بنایا ہے بھائیوں, کس کے لیے؟ کیا پڑھا گیا 21ویں آیت میں, میں نے ان لوگوں کو اپنے لیے بنایا ہے. خدا نے ہمیں بنایا ہے. آپ کو کس نے بنایا ہے؟ میرے ساتھ رہیے, آواز کم ہے. آپ کو بہنوں کس نے بنایا ہے؟ بھائیوں آپ کو کس نے؟ خدا نے بنایا ہے. لیکن سبب کیا ہے, خدا نے کیوں بنایا ہے آپ کو؟ اس کا آنسر, اس کا جواب اکیلا ہی ہے. جی, تاکہ وہ میری حمد کریں. تاکہ وہ میری کیا کریں, یہ آنسر ہے. 21ویں آیت میں, میں نے ان لوگوں کو اپنے لیے بنایا تاکہ وہ میری حمد کریں. تاکہ میری حمد کریں. اور حمد کرنے کے لیے پیچھے زبور کی کتاب میں ہم نے کیا پڑھا, میرے مقدسوں کو میرے حضور جمع کرو. خدا کے خادم تو جمع کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن لوگ جمع ہونا نہیں چاہتے. میری بات سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ پوری دنیا میں جتنے لوگ خدا کی خدمت کرتے ہیں, وہ لوگوں کو جمع کرتے ہیں, ان کو انویٹیشن دیتے ہیں, آؤ خدا کے گھر چلے. لیکن لوگ اس انویٹیشن کو اتنی اہمیت نہیں دیتے. اگر ان کو کوئی دوسرا انویٹیشن مل جائے تو وہ کیا کرتے ہیں مائیکل بھائی, خوشی خوشی جاتے ہیں. اور سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ کوئی انویٹیشن نہ دیا جائے, شادی کا یا کسی طرح کا بھی, تو کیا شکوے, گلے, ناراضگی, اساں تے اس کار پڑھتے ہی بھی کی گل ہے, تسی تے میرے بڑے امپورٹنٹ ہو. کہتے امپورٹنٹ بلائے نہیں, انویٹیشن نہیں دیتا. میرے عزیز, وہ انویٹیشن صرف ایک دن کا ہوتا ہے. وہ جو انویٹیشن جیسے ہی پروگرام ختم, وہ انویٹیشن ختم, اس کی اتنی کوئی اہمیت ڈیمانڈ نہیں ہوتی. لیکن یہ جو انویٹیشن ہے خدا کا پاسبانوں کو دیا جاتا ہے کہ میرے مقدسوں کو, خدا انویٹیشن دیتا ہے اپنے خادموں کو, اور خدا کے جو خادم ہیں وہ انویٹیشن آگے دیتے ہیں. کیا انویٹیشن میری بہنوں, کیا انویٹیشن ہے میرے مقدسوں کو, یہ انویٹیشن ہے میرے مقدسوں کو میرے حضور جمع کرو. تو 21ویں آیت میں کیا پڑھا ہے, میں نے ان لوگوں کو اپنے لیے بنایا ہے, نہ کہ دوسرا بھی ہے کوئی جو گرایا گیا, جو رد کیا گیا ہے. وہ کون ہے؟ ابلیس, شیطان. میں نے ان لوگوں کو اپنے لیے بنایا تاکہ یہ میری حمد کرے, نہ کہ اس ابلیس کی. آج بہت سارے لوگ, بڑی تعداد ابلیس کے ہاتھوں, اس کی گرفت میں ہیں. وہ نکل بھی جاتے ہیں, خدا کام کرتا ہے. ہاللیلویا. یسوع نام کے وسیلہ سے بدروہی کامتی ہے, اس کے نام کے وسیلہ سے معجزات ہوتے ہیں. کوئی آمین کہہ سکتا ہے؟ اس کے نام کے وسیلہ سے اندھے دیکھتے ہیں, اس کے نام کے وسیلہ سے لنگڑے چلتے ہیں. آج بھی اس کے نام کے وسیلہ سے معجزے ہوتے ہیں. ہاللیلویا, ہاللیلویا. لیکن جب معجزات زندگی میں ہوتا ہے, ہم شیطان سے دور ہو جاتے ہیں, لیکن شیطان ابلیس پیچھا نہیں چھوڑتا میری عزیز. اسی لیے تو ہر روز ہمیں خدا کی حضوری میں آنا ضروری ہے, تاکہ ہم ابلیس کو منہ توڑ جواب دیں. جب ہم خدا کی حضوری سے نکل جاتے ہیں تو خدا کا ہاتھ بھی ہم سے دور ہو جاتا ہے. آئیے لوکا کی انجیل, اس کے پہلے باب میں, لوکا کی انجیل, وہاں پر لوکا طبیب, جس کے نام کا مطلب روشنی ہے, ہمیں کیا کلام کی روشنی دینا چاہتا ہے. پہلے باب کی اس کی آیت ہے 71.
75 आई। पाकलम में कुछ यूं लिखा है। जी माइकल भाई। उसके हजूर पाकीज़गी और रास्तबाजी से उम्र भर बेखौफ उसकी इबादत करे। खुदा के कलाम में क्या लिखा है? उसके हजूर जी पाकीज़गी और यानी खुदा के हजूर नंबर 1 पाकीज़गी और रास्तबाजी से उम्र भर, पैदाइश से लेकर पहले दिन से लेकर जब तक हमारे जिस्म में रूह है, जब तक हमारी जिस्म के अंदर सांसें हैं, तब तक फर्स्ट डे से लेकर लास्ट डे तक खुदा क्या चाहता है? जिसने हमें बनाया है वो चाहता है कि बेखौफ। कौन से खौफ में? बेखौफ। उसकी करनी क्या है? सिर्फ इबादत करनी। खुदा चाहता है उम्र भर हम उसकी इबादत करें मेरे अजीज। लेकिन हम पूरे दिन अपना शेड्यूल तो देखते हैं कि मॉर्निंग में हमने ये नाश्ता बनाना है, नाश्ता बनाते बनाते हम दोपहर का सोचते हैं कि दोपहर के अंदर ये हमने चीजें मैनेज करनी है, लानी है, अरेंज करनी है। उसके बाद दोपहर का खाना बनाने के बाद हम डिसाइड करते, सोचते हैं, प्लान करते हैं किचन के अंदर ही। बहनों की बात कर रहा हूं कि रात में डिनर में क्या हमने लेना है, क्या बनाना है। प्लानिंग हमारी पहले से होती है। तो क्या हमारी प्लानिंग नहीं हो सकती कि हमारे आने वाले पल में हम खुदा के साथ कैसे जुड़े रहे? मैं अक्सर ये बात कहता हूं अपने चर्च से भी और सोशल प्लेटफॉर्म पे जो मुझे देख रहे सुन रहे हैं, बाकी हम जितने भी काम हैं बड़े एक्टिव होके करते हैं। मेरे भाइयों आप जाग रहे हैं, मेरी बहनों आप लोग जाग रहे हैं। जितने भी काम हैं हम बड़े एक्टिव होकर करते हैं, लेकिन जब हम खुदा के घर में इंटर होते हैं तब हम सुस्त पड़ जाते हैं। ये बात समझ रहे हैं आप लोग? खुदा का घर ही क्यों? हाँ, तसल्ली मिलती है, सुकून मिलता है। अब सुकून मिलने से ये मतलब नहीं कि हम सुस्त पड़ जाएं, सोने की हालत में आ जाएं। खुदा ये नहीं चाहता। खुदा चाहता है कि मेरे मुकद्दसों को मेरे हजूर जमा करो। जमा तो हम हो जाते हैं, लोग हजूर आ जाते हैं, लेकिन जो बाइबल का असल मकसद है वो भूल जाते हैं। मैं समझता हूं बहने भाई सुबह को उठकर पूरा दिन काम काम, नाश्ता बनाओ, बच्चों के लिए ये करो वो करो, बहुत बिजी शेड्यूल होता है। मैं इस चीज से इनकार नहीं कर रहा, लेकिन वो काम तो हम कर रहे हैं मजबूरी से, खुशी से, जैसे भी। लेकिन खुदा चाहता है कि हमारी पूरी अटेंशन जो है वो खुदा के हजूर में हो, तभी इबादत का मकसद पूरा होगा। हम गीत गा रहे हैं रब खुदावंद बादशाह है, लेकिन हमारे घर की तरफ ध्यान है। हम कह रहे शुक्र यहोवा ताही करो, लेकिन हमारा दिमाग हमारी सोचें घर की तरफ है, किसी और ख्यालात किसी और तरफ है। क्या खुदा दिलों को नहीं जानता? खुदा हमारी सोचों को नहीं जानता? हम उसके हजूर में आकर भी अपने मकसद को भूल जाते हैं। पूरा फोकस, खुदा पूरा फोकस चाहता है कि जैसे हम अपने घर में एक्टिव हैं, खुदा के घर में आकर मेरे ख्याल से घर पर अगर हम 50 हैं तो खुदा के घर में हमें 100 का 100 होना पड़ेगा। एक होता है 99, एक कम 100 नहीं। खुदा के काम में कोई गुंजाइश नहीं है, एक पॉइंट की भी नहीं है, पूरा का पूरा 100। जिसने बनाया है वो ये कहता है कि मैंने इन लोगों को अपने लिए बनाया। सबब क्या है? खुदा क्यों बनाया हमें? ताकि मेरी इबादत करो, मेरी हम्द करो। सबब ये है। आसमान पर बेशुमार फरिश्तेगान उसकी प्रस्तिश करते हैं, उसके हजूर खड़े रहते हैं और कहते हैं कदूस कदूस कदूस। फिर भी खुदा ने हमें बनाया ताकि हम उसकी हम्द करें। सोचें
क्या हम हमद करते हैं? जो इबादत का मकसद है, जो खुदा चाहता है। मैंने पहले पार्ट के अंदर बताया, हम वो करते हैं जो हम चाहते हैं, हम वो करते हैं इबादत के अंदर जो हम चाहते हैं। प्रेसिडेंट ने कहा तालियां बजाइए, कोई बजा रहा है, कोई नहीं बजा रहा। प्रेसिडेंट कहता है गीत गाएं, कोई गा रहा है, कोई नहीं गा रहा। प्रेसिडेंट कहता है आंखें बंद करें, दुआ करें, कोई करता है, कोई आंखें खोल के कभी उसको देखता है, कभी उसको देखता है। मेरी बात समझ, मकसद जो इबादत का है उससे हम बड़ी दूर चले जाते हैं। मैंने लोगों को अपने लिए बनाया ताकि वजह क्या है, ताकि ये मेरी हमद करे। जब हमद का टाइम होता है तो हमें हमद करना जरूरी है। हालेलुया, तभी तो बरकतें आएंगी। देखें, एक बाप है, आप अपने अपने बाप को अपनी निगाह में रखें। जो आपके फादर है, वालिद हैं, उनकी जो पिक्चर है, उनका जो कॉन्सेप्ट है, उनको अपने सामने रखें कि आपका बाप आपका सरबराह है, आपके लिए सब कुछ है, वो आपका कमांडर है। जो कमांडर ने कहा ये करो, अगर बेटा नहीं करेगा तो कमांडर खुश होगा? बेटा कहेगा बाप मुझे ये चाहिए, वो कहेगा कैसा बाप? बेटा तो वफादार होना चाहिए, बेटा वफादार नहीं है, नाफरमान है, बाप भी किसी चीज को नहीं उसको एक्सेप्ट करने देगा। ऐसे ही हमारा खुदा बाप है, उसने जिस काम को करने के लिए हमें बनाया है, अगर वो हम काम नहीं करेंगे फायदा नहीं। मैंने बड़ी देर पहले पास्टर साहब, पास्टर जॉर्ज ने भी ये कलाम किया सब्बत की अहमियत के बारे में कि हफ्ते में एक दिन हमें खुदा को देना ही देना है। लोग एक इतवार चर्च आते हैं, उसके बाद पता ही नहीं होता कि अगले इतवार उसने आना ही नहीं आना। मसरूफियात, बिजी लोग कहते हैं हमारे घर में बरकत नहीं है, पैसा आया कहाँ चला गया पता ही नहीं है। भाई बरकत कैसी आएगी? जिसके वसीला से जिसने बरकत देनी है उसको तो आपने नाराज किया है। जिसकी इबादत करनी है आप उस इबादत का मकसद भूल चुके हैं, कैसे बरकत मिलेगी? आगे बढ़ेंगे। आइए, पतरस खुदा का बंदा क्या कहता है? पहला पतरस, खुदा के कलाम की बातें बड़ी अहम इंपॉर्टेंट है जी, कोई भी पढ़ने में रहनुमाई करे। पहला पतरस है उसका दूसरा बाब, और खुदा का कलाम क्या सिखाता है? मेरे चीज आपकी अहमियत आपको बताने वाला हूं, खुदा के लोगों की अहमियत। मेरे हुजूर, मेरे मुकद्दसों को क्या करना है? मैंने इन लोगों को खुदा कहता है अपने लिए बनाया ताकि ये मेरी और आपकी खासियत, उन लोगों की खासियत जो इबादत के मकसद को याद रखते हैं और खुदा को याद रखते हैं, उनके बारे में क्या लिखा है? माइकल भाई खड़े होकर पढ़ेंगे जोर से। कलाम में यूं मरकूम है जी, लेकिन तुम एक बदनसीबा नस्ल, लेकिन तुम एक कौन सी नस्ल हो? कौन सी नस्ल? अक्सर लोग जो हैं, जब बच्चे जो है ना माँ को तंग करते हैं, जब बच्चे किसको तंग करते हैं? माँ को। माँ परेशान हो जाती है, तो बच्चे जो हैं माँ को तंग करते हैं, बच्चे हैं, बड़े तो हैं ही, तो माँ जो है वो बच्चे की नस्ल को कंसीडर करती है। वो क्या कहती है? तेरी तो नस्ल ही है जी, पैड़ी नस्ल। मैंने अपने कानों से सुना है, मैं खुदा के मज़बा को मैं सच्ची बात करूंगा। बड़ी ऐसी माँ है जो अपनी औलाद को, जो उनके बदन से पैदा हुई है, वो अपनी औलाद को माइकल भाई कहती है गंदी नस्ल। एक वक्त अय्यूब ने अपनी बीवी से कहा तुम बेवकूफ हो, या नादान औरतों की सी बातें क्यों करती हो? ये जो माँ अपनी औलाद को नस्ल गिनाती है, बताती है कि तू ऐसी नस्ल का है, तो सोचे वो माँ तो बेवकूफ है। भाई ऐसी नस्ल पैदा करने का सबब किसने? वो तू ही है जो ऐसी नस्ल पैदा कर चुकी।
नस्ल खराब क्यों हुई है? क्योंकि तरबियत नहीं। तरबियत होगी तो नस्ल भी ठीक होगी, राजकुमारों की औलाद मुबारक होगी। क्या सबब है कि बच्चे राह से निकल जाते हैं, फिर जाते हैं, वही औलाद अपने माँ बाप की नाफरमानी करते हैं? क्योंकि माँ अपने बच्चों को सिर्फ डिग्रेड करती रहती है। बहुत सारी माँ ऐसी हैं, बहुत सारी जगह पे बच्चे की साइड लेती है। बच्चे की गलती भी होगी ना, फिर भी वो कहेंगे नहीं इन्हें कुछ नहीं किया। ठीक है, माँ साइड लेनी चाहिए, लेकिन ज्यादातर माँ ऐसी करती है, वो गलत जगह पे साइड लेती है। बच्चों को समझाएं, बच्चों की परवरिश करें, खाने पीने के लिहाज से बहुत कुछ करते हैं, सुबह से लेकर रात तक हर टाइम हम बच्चों के लिए सैक्रिफाइस करते हैं, कुर्बानियां देते हैं, लेकिन यहाँ पर आकर हम अपने हाथों से अपने ही बच्चों का मुस्तकबिल खराब कर रहे हैं। यस और नो? आपकी आवाज नहीं आ रही? यस और नो? अपने आप को देखे हम कहां पर हैं। आगे नस्ल की बात हो रही है, खुदा का कलाम क्या कहता है? लेकिन तुम एक बरगजीदा नस्ल, शाही कानों का फिरका, शाही कानों का फिरका, कौन सी कौम? मुकद्दस कौम। क्या बात है! अगर आपको कह दिया जाए मुकद्दस कौम है, तो चेहरे पर क्या होनी चाहिए? मेरी बहन, आप मुकद्दस कौम है, खुशी होनी चाहिए। भाइयों, आप मुकद्दस कौम का हिस्सा है, शाही कायनों का फिरका है, एक बरगजीदा नस्ल है। आगे लिखा है और ऐसी उम्मत हो जो खुदा की खास क्या है? मलकियत है। जी माइकल भाई पढ़ते जाए। ताकि खुदा की खूबियां जाहिर करो, जिसने तुम्हें तारीकी से अपनी अजीब रोशनी में बुलाया। पहले तुम कोई उम्मत ना थे, पहले आप कोई उम्मत ना थे, बट नाउ पढ़े, मगर अब खुदा की उम्मत हो। तुम पर रहमत ना हुई थी, मगर अब तुम पर क्या हुई है? रहमत हुई। हालेलुया। लास्ट टाइम ये बात कही थी, रहमत ना है पर या पाक यहाँ मासा डाल। कितनी खूबसूरत बात है। आप यकीन जाने, खुदा हमसे बिल्कुल डिमांड नहीं करता मेरे लिए बैल लेके आओ। थैंक यू बेटे। मेरे लिए बैल लेके आओ, बछड़ा लेके आओ, वो लेके आओ, कुछ भी नहीं। खुदा कुर्बानी नहीं चाहता, खुदा हमसे सिर्फ वफादारी चाहता है। हालेलुया। खुदा हमसे वफादारी चाहता है, वफादार हो जाए। अपने ज़हन को बस ये कॉन्सेप्ट बना ले, कुछ भी हो जाए, मैंने खुदा के हजूर में हफ्ते का एक दिन मुकर्रर करना है, कुछ भी हो जाए मैंने चर्च जाना ही जाना है। अब यकीन जाने, ये आने वाले टॉपिक में मैं बताऊंगा, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो घरों पर भी इबादत कर लेते हैं। टीवी सामने लगाई, घरों पे इबादत हो रही है, लेकिन खुदा का कलाम हमें कुछ और कहता है। खुदा का कलाम हमें क्या कहता है वो नेक्स्ट इसको देखेंगे, लेकिन मेरे अजीज, खुदा का कलाम कहता है मेरे हुजूर मेरे मुकद्दसों को जमा करो। आप उसके मुकद्दस लोग हैं, शाहिकानों का फिरका है, बरगजीदा नस्ल है, उसकी खास उम्मत है। तो खुदा ने आपको जिस काम के लिए बनाया है, उस काम को आप रिजेक्ट ना होने दें, इब्लीस को खुश ना करें, बल्कि जिसने बनाया है, जिस मकसद के लिए बनाया है, जिस पर्पस के लिए बनाया है, वो पर्पस ये है कि आप खुदा की इबादत करें और इबादत का मकसद जो है उसको पूरा करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद आज के कलाम को सिर्फ सबको बड़ी बरकत दे। आमीन।